Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. In this session, we are going to continue with our discussion based on BFM Module A. Okay. In our previous session, where we already done with all these units, so today we have 4 units: risk in foreign trade, role of ECGC, role of Exim, RBI, and other. Then we have unit international financial service center and the unit number 10, which is technology in foreign trade. Okay. So these are the 4 units which we are going to discuss in this particular session. Okay. So I hope आपने जो पुराने सेशन आपके हैं वो सब देख लिए होंगे and concept videos are already done from our side for all the 4 modules and यूनिट वाइज आपका वीडियोस पूरे 31 यूनिट्स के। इसके अलावा एक और चीज़ आपको मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपका चैनल के ऊपर मॉड्यूल A B C D ये सारे किए हैं और इनका कंपाइलेशन भी आपके लिए रखा हुआ है, तो उनको आप देख सकते हैं फॉर द रेफरेंस पर्पज, राइट। जो कंटेंट आपका स्टैटिक है यहाँ पे, मतलब वही कंटेंट आपका 1 साल पुराना भी था, यही अभी भी है, ठीक है। सो वो आपका कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं बनाते हैं। हाँ, from like soon I'll come up with some new set of questions which will include question without options as well as केस स्टडीज, तो वहां पे हम लोग थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ईसीजीसी। which of the following regulation deviate from the standard regulation to favor large exporters? So to facilitate large exporters, there is a policy called export turnover policy, which is a kind of standard policy, but it is only for value customers. Value customer means the premium contribution by these particular exporters is more than 10 lakh per financial year. तो ऐसे आपके जो एक्सपोर्टर्स जिनके द्वारा ईसीजीसी को आपका 10 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम आपका पे किया जाता है, तो उनको ईसीजीसी के द्वारा कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ आपका, जैसे इंटरेस्ट रेट के अंदर आपका सबवेंशन है, ठीक है। इसके अलावा जो स्पीडी प्रोसेस या अदर सब वो सब, ठीक है। तो एंड उस पॉलिसी को नाम दिया गया है export turnover policy. So B will be right answer for this one. Okay? So the export turnover policy is a variant of the standard policy created for significant exports who pay at least 10 lakh in premium annually. Large exporter can take advantages of this policy with lower premium, streamlined process, and bigger discretionary credit limits among the other advantages. Okay, so there are around 23 to 24 policies which are ongoing as of now, right? If you open the ECGC website, अब उसमें से there are some policies which are generally part of your कोर्स करिकुलम, जिसमें जैसे आपका स्टैंडर्ड पॉलिसी जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसी आपका है। इसके अलावा आपका स्मॉल पॉलिसीज हैं। ऐसे ये जो पॉलिसीज हैं जिनको हमने फंडामेंटल्स में, जितने भी पॉलिसीज आपका बुक का पार्ट है वो सारे वहाँ पे कवर किए हैं, तो उनको अच्छे से आप पढ़िए और उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। सो व्हाट इज डिस्क्रिशनरी लिमिट और डीएल in case of ECGC? So DL आपका it is a limit which is decided by ECGC toward the banks. It is about the bank finance to exporters. Okay, तो ये एक ऐसा लिमिट है जो ECGC के द्वारा बैंक्स को बोला गया है about the exporters, कि अगर आप किसी एक्सपोर्टर को इस अमाउंट तक आपका लोन देते हैं, सो यू डू नॉट नीड टू आस्क ECGC और यू डू नॉट नीड टू टेक or take any kind of permission from ECGC for the insurance coverage. Let's say for a exporter X, ECGC the DL limit is supposed at 1 crore, ठीक है। तो अगर आप जैसे कोई बैंक आपका है, अगर उसको 1 करोड़ रुपए तक का फाइनेंसिंग कर रहा है, तो उसको ECGC के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो बैंक itself they can approve this much of loan to this exporter. हाँ, अगर आपका एक्सपोर्टर की रिक्वायरमेंट है 1.50 करोड़, so in this particular situation we need to ask ECGC first, we need to take approval from ECGC, तो आपको ECGC से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा और वो आपका कहीं ना कहीं अगर इसको अप्रूव करता है देन ओनली विल बी एबल टू सेंक्शन दिस मच ऑफ मनी। अब देखो यहाँ पे जनरली क्या होता है, इसको रखने का मोटिव क्या है,
तो अगर जो ज़्यादा बड़े अमाउंट्स के लोन हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका जो ड्यू डिलीजेंस या अदर्स जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ईसीजीसी की तरफ से भी होनी चाहिए, क्योंकि अमाउंट बड़ा है। डिफॉल्ट की अगर डिफॉल्ट होता है तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में शेयरिंग होगा तो ईसीजीसी का भी नुकसान होगा। बट ये जो छोटे छोटे लोन है ना, वहां पे आपका ईसीजीसी ने एक डीएल लिमिट दिया है बैंकों को, सो दे कैन अप्रूव टिल दैट पर्टिकुलर लिमिट। तो जिससे कहीं ना कहीं जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, काफी ज्यादा फास्ट होगा और स्ट्रीमलाइंड होगा, राइट। सो क्या होगा आंसर आपका, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंस दैट अ बैंक कैन अलाउ विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम ECGC. So option A only will be right answer for this particular one. I hope this is clear to all of you, right? So the greatest amount of financing that a bank can offer to an exporter without first receiving ECGC consent is known as discretionary limit. Before disbursing the loan, the bank must first receive approval from ECGC if the amount is above DL. Okay, so this is so that a bank may only provide an exporter with so much of financing before having to go through the entire underwriting procedures as determined by ECGC known as DL. This keep ECGC from being exposed too much risk while enabling bank to approve a smaller loan for more swiftly and easily, right? तो दोनों areas को आपका ध्यान में रखते हुए ये जो चीज की गई। Next one, which of the following risk is covered by corporations? Corporation means ECGC's small exporter policy. So small exporter policy will generally cover to the पॉलिटिकल रिस्क ओनली, ठीक है। तो अब पॉलिटिकल रिस्क क्या है इसमें, चेंज इन एक्सचेंज रेट एंड एक्सपोर्टर्स फेलियर्स टू अदर टू दी कंडीशंस, नो, ये कमर्शियल रिस्क में आता है आपका, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट अपराइजिंग रिवोल्यूशंस और अदर अनरेस्ट इन कंट्री ऑफ बायर्स, ठीक है, तो ये आपका कवर होगा, ठीक है, तो बी होना चाहिए। प्रोडक्ट लॉसेस और डैमेजेस दैट ऑर्डिनरी इंश्योरर may cover, no, it is also part of commercial one, ठीक है। न्यू import restrictions or cancellation of valid import license, this is also new import restriction by buyer country, so this will be also part of this one, ठीक है। तो B or D, so B or D means option B will be right answer for this particular one, ठीक है। तो small exporters policy which generally cover to the पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क मीन्स कंट्री रिस्क, ओके। तो कंट्री जो बायर्स की कंट्री है उसके द्वारा अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं या ऐसा कोई भी ऐसा जैसे सिविल वॉर या अदर्स चल रहा है उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होता है, सो दैट विल बी बोर्न बाय द कॉर्पोरेशन, ठीक है। So certain risk falling under political risk category are covered under small exporters policy provided by corporation. These damages include war, civil conflict, revolution, political unrest in the country. Political risk include those associated with these particular one, ठीक है। New import restrictions or cancellation of valid license is also covered under the small exporters policy. Understood? ठीक है, तो अब इसके लिए ना आपको पॉलिसीज को पढ़ना होगा, बहुत बार आप कंफ्यूज होंगे इनमें, ठीक है, बट उसके लिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। What could cause an exporter to experience an exchange loss in the context of exchange rate risk, ठीक है। So, what could cause an exporters to experience exchange loss in a context of exchange rate risk? Okay, very nice question, हाँ, ठीक है। देखो क्या होगा आपका इस particular situation में अगर हम लोग बात करें, ठीक है। So, let's say there is a buyer and seller, ठीक है। So, let's say there is a seller, exporters basically, X, ठीक है, from US, and there is a buyer Y from India, ठीक है। सो ये दोनों के बीच में इनके बीच में आपका एक सेल एग्रीमेंट आपका हुआ है वर्थ $10 million, ठीक है। आपका मीन्स द पेमेंट्स विल बी मेड बाय दिस वाई बायर्स और इंपोर्टर्स इन डॉलर्स, ठीक है। डॉलर डिनोमिनेशन में आपका इनका चीज हुआ है, ठीक है। सो नाउ सेलर, आपका सेलर इज गोइंग टू रिसीव दीज $10 million, ठीक है। इसको ये डॉलर में ही आपके पेमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, व्हाट कॉज एक्सपोर्टर, ओके, एक्सपोर्टर के संबंध में था ये, सो आई विल रिवर्स दिस केस, ठीक है। सो सपोज दैट इट इज फ्रॉम इंडिया एंड इट इज फ्रॉम यूएस, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्टर का है, ठीक है।
तो आपका सेलर इज फ्रॉम इंडिया एंड एक्सपोर्टर्स बायर इज फ्रॉम यूएस, ठीक है, यूएस का बायर है और इंडिया के उसमें। अब जहाँ पे एक मतलब जहाँ पे जो इंडियन सेलर है उसने बोला कि आपको इसके बदले में कितना करना पड़ेगा आपका, ठीक है, सो यू हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, बायर्स सेलर्स आपका फ्रॉम, हाँ पहला वाला केस भी चल सकता था, कोई भी केस चल जाएगा एक्चुअली, ठीक है। सो सपोज दैट सेलर इज फ्रॉम इंडिया, ठीक है, एंड बायर इज फ्रॉम यूएस, तो आपका क्या है, एक्सपोर्टर्स टू एक्सपीरियंस एंड एक्सचेंज लॉस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो अब देखो इस सिचुएशन में क्या होगा ना, एक्सपोर्टर इज गोइंग टू रिसीव मनी इन डॉलर, ठीक है। अब एक्सपोर्टर आपका डॉलर में पैसा रिसीव करेगा। सपोज दैट द स्पॉट रेट, द पेमेंट डेट इज 3 months लेटर, ठीक है। So suppose that spot date is $1 is equal to suppose that 84 rupees. ये आपका अभी का जो रेट आपका चल रहा है, दैट मीन्स अगर अभी की वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, तो 10 मिलियन इंटू 84 का आपका जो ओवरऑल पे आउट होगा किसको, आपका जो ये सेलर एक्स है उसको, ठीक है। अब कल के डेट में दिस ये जो आपका है कहीं ना कहीं दो पेमेंट्स आपकी एक्चुअली हो गई बायर के द्वारा, वो हो गया आफ्टर 3 months, ठीक है। अब अगर विद इन 3 months आपका, जैसे सपोज दैट इफ देयर इज अ चेंज, ठीक है, अगर यहाँ पे आपका कुछ चेंज होता है किसमें, रुपी की, डॉलर की वैल्यू में या इस पर्टिकुलर करेंसी के उसमें, ठीक है, तो अगर यह पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है तो इसका इम्पैक्ट आपका किस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जैसे अगर ये पेमेंट्स आपका होनी है किसमें, डॉलर में, अब अगर सपोज दैट डॉलर वीक हो जाता है, ठीक है, सो डॉलर वीक होने का मतलब आपका जैसे आफ्टर 3 months इट बिकम $1 इक्वल टू 80 रुपीज, ठीक है, सपोज दैट ये आपका हो जाता है। सो नाउ दिस सेलर इज गोइंग टू रिसीव मनी इन दिस डॉलर इटसेल्फ, ठीक है, डॉलर में इसको पेमेंट होना है। तो जहां पे पहले इसको $1 का 84 रुपीज मिल रहा था, अब ही विल रिसीव ओनली 80 रुपीज फॉर पर डॉलर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो सेलर है उसका क्या होगा, नुकसान होगा। अगर आपका जो वहां की होम करेंसी आपकी है, जो होम करेंसी है अगर उसको स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है, मतलब सेलर की होम करेंसी क्या है आपका, रुपया है, और अगर रुपया स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है, मतलब डॉलर वीक हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है आपका, कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्टर है उसका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स केस ले लेते हैं, अगर आपका लेट्स से बाय द एंड ऑफ 3 months इट बिकम 90 रुपीज, ठीक है, ये 90 रुपीज आपका हो गया, ठीक है। तो इस केस में आपका नाउ जैसे आपका यहाँ पे उसको कितने डॉलर मिलेंगे, ही विल गेट 90 मिलियन डॉलर। तो जब ये 90 मिलियन को आपका रुपी 10 मिलियन सॉरी 90 रुपीज पर डॉलर मिलेगा, तो जब इसको रुपी में कन्वर्ट करेगा ही विल गेट मोर रुपीज इन दैट केस, ठीक है। सो अगर इफ देयर इज अ स्ट्रेंथ, ठीक, अगर आपका जो करेंसी है डोमेस्टिक करेंसी है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी अगर पेमेंट वाले उसमें, तो कहीं ना कहीं अगर हम उसके उसमें देखें, ठीक है, जो उस जैसे पेमेंट डॉलर में होने वाला है, अगर डोमेस्टिक को स्ट्रेंथ मिली है तो ये एक नुकसान हो जाएगा एक्सपोर्टर का, और अगर पॉजिटिव आपका वीकनेस हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा होगा, ठीक है, एक्सचेंज के हिसाब से अगर हम देखते हैं। सो स्ट्रेंथिंग ऑफ होम करेंसी कंपेयर टू competitors home currency, so option A only will be right answer for this one, ठीक है। exporter to experience an exchange loss in the context of एक्सचेंज रेट रिस्क आपका, ठीक है, तो इस केस में उसको क्या होगा, लॉस होगा, एक्सपोर्टर को लॉस होगा। सो ए ओनली विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आएगा, बोथ द साइड, ठीक है। अगर आपका होम करेंसी वीक होगी तो उसको फायदा होगा, अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि उसको पेमेंट जो मिलना है किस में मिलना है, डॉलर में मिलना है, तो आफ्टर कन्वर्जन अगर हम देखते हैं तो उसके हिसाब से ये आपका चला जाएगा, ठीक है। So the danger of unfavorable change in currency exchange rate, it could lower the value of international commercial transaction, is referred as exchange rate risk. An exporter is exposed to a risk of currency fluctuation between their home country, currency of the exporter's country, and the foreign currency in which the invoice is denominated, ठीक है, जैसे आपका invoice किस में denominated था, डॉलर में। So when the invoice their goods or services in the foreign currency, ठीक है। अगला, what kind of risk is connected to the potential for export default or payment default because of events in the buyers and sellers country, ठीक है। तो आपका जैसे जो बायर और सेलर की कंट्री में वहां के जो रूल्स रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं या कोई वॉर कंडीशन है या अदर्स, so they are generally categorized as political risk, या जिनको हम लोग आपका
कंट्री रिस्क के नाम से जानते हैं, ठीक है. सो इट इज कॉल्ड कंट्री रिस्क एज पर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है. So the risk category is known as country risk is connected with the potential for export or payment default brought on by event in the buyer or seller country. It contained various elements like economic, political, social possibilities in the nations where the consumers or vendor is located that could impact international trade transactions, ठीक है. तो जिसमें आपका वॉर, सिविल वॉर्स या दो कंट्रीज के बीच में जो बायर सेलर के कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, दस दे आर जनरली पार्ट ऑफ दिस, ठीक है. Which ECGC insurance program cover bank loan made to exporters for the production, processing, acquisition, packaging of commodities for export in response to firm order or letter of credit. तो ये हमने पिछले वाले सेशन में भी डिस्कस किया था, ठीक है. तो ये आपका जैसे लाइक जो आपके एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटीज हैं दो तरीके से, प्री शिपमेंट और एक आपका पोस्ट शिपमेंट. इट इज द केस ऑफ प्री शिपमेंट. प्री शिपमेंट मींस पैकिंग लोन आपका, ठीक. पैकिंग लोन है तो आपका पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस जो यहाँ पे आपका रहने वाला. सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. नेक्स्ट वन गाइस, व्हाट रोल डू अ डिस्क्रिशनरी लिमिट play in the context of ECGC policy and financial guarantee for banks. अब DL limit अभी हमने समझा था DL को. So DL denote the highest level of protection that ECGC will permit for any finance or export transaction. No bank can permit financing up to a DL without seeking previous ECGC clearance, but they must do so for amount over the DL limit. तो option B which is 100% true in this particular case. आगे जाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि हम इसको आपका डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है. ये थोड़ा सा आप इसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसको आप पढ़ लीजिएगा तो जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी. Which of the following claim about ECGC policies is accurate? So true about ECGC policy out of the four given statement. The value of export made or financing approved by a bank is fully covered by ECGC. The value of export made or financing approved by bank is fully covered by ECGC. Okay. There is no risk sharing basis for the insurance for of any ECGC. No. ECGC insurance does not cover political risk. It cover exporter or bank providing the financing split the loss experienced during the export or financing by ECGC standards. So option D will be right answer for this particular question. Okay, so it's just sharing based things. So ECGC policies financial guarantee are offered on a risk sharing basis. Okay. Thus the choice is appropriate. D1 is true. That means this indicate that coverage offered by ECGC does not fully account for the value of export made or financing approved by banks. Instead, the exporter or financing bank that accept the insurance or financial guarantee must share some sum of losses experienced during the export financing. Typically, ECGC offer coverage up to 90% to 95% of the value of amount funded by encouraging the exporters and the financing bank to have a part in the सक्सेस ऑफ द एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है. तो ECGC ने यहाँ पे क्या किया, लाइक जैसे कोई भी एक्सपोर्ट आपका हो रहा है तो उसका 90 to 95% हम लोग आपका कवरेज देंगे, रेस्ट विल बिलोंग्स टू बैंक. अगर डिफॉल्ट होगा सो विल हैव दैट पर्टिकुलर शेयरिंग इटसेल्फ, ठीक है. जैसे बैंक भी थोड़ा सा कॉशन के साथ आपका अप्रूवल्स करेंगे यार, ठीक है. नेक्स्ट वन, व्हाट रिस्क कवर्ड बाय अ शॉर्ट टर्म policy that ECGC provide to Indian exporters. Short term policy which is linked with the commercial risk आपका, ठीक है. Small policy political risk, short term आपका commercial risk, ठीक है. So any government actions और देखिए political हो जाएगा, protect losses or damages, yes. Negligence on the part of the exporter or a failure to comply with the conditions of the export contract, the buyer failure to secure the
required import or exchange authorization from his country authorities this. तो these two are आपका बी और डी कहीं पे है, यस हाँ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो ये पॉलिसीज ना आपको एक बार गो थ्रू करनी पड़ेंगी, ठीक है। पीडीएफ्स भी मैंने शेयर किए हैं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, एक साथ डाउनलोड करना चाहते हो, सो जस्ट डाउनलोड द एप्लीकेशन, ठीक है। एक बार आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे सारे पीडीएफ्स आपका जो फ्री सेक्शन, फ्री नोट सेक्शन है, बीएफएम पे जाओगे, एक फोल्डर के अंदर सारे पीडीएफ्स हैं। तो वहाँ पे इतना थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, जिस तरीके से आप करोगे तो वहाँ पे सारे आपको पीडीएफ्स जो कि अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। Which of the following risk is covered by a short-term short-term small exporters policy offered by ECGC? Exporters bankruptcy, change in exchange rate, commercial risk that covered by buyers refusal to accept goods without the exporter's fault. इसके अलावा losses or damages to the product in general insurance cover. So C should be right answer for this one, right? Next one. Which danger from the list below is not protected by ECGC? तो कौन सा रिस्क आपका ECGC के द्वारा कवर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो बिजनेस रिस्क आपका नहीं किया जाता, पॉलिटिकल रिस्क होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ परचेज, परचेजर विल गो इंसॉल्वेंट, ये कवर होता है कमर्शियल रिस्क, पॉसिबिलिटी ऑफ अ कोप इन बायर्स नेशन, ये कवर होता है, ठीक है। तो बिजनेस रिस्क आपका विच इज रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ बायर और सेलर, ठीक है। बिजनेस रिस्क क्या होते हैं, जैसे ऑपरेशन से रिलेटेड या जो भी कमिटमेंट्स हैं वो कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं ऑल, सो दे आर नॉट गेट कवर्ड अंडर दिस वन, ठीक है। So business risk is the collective term for all the dangers that business encounter on daily basis, including जैसे market rivalry, shifting customer taste, technical improvements, managerial choices, etc. These risks are often handled by company itself using a variety of tactics and risk management technology and techniques, and they are not get covered under ECGC. Next one. What is the goal of export turnover policy of ECGC? तो एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी हमने क्या समझा था, 10 लाख से ज्यादा के जो प्रीमियम आपका कंट्रीब्यूट करें उनके लिए, तो जो वैल्यू कस्टमर्स हैं उनके लिए, टू सपोर्ट स्मॉल exporters, to provide insurance cover for a specific export shipments, to safeguard exporter from payment risk associated with short-term loans, it could be, so to offer bank and other financial institutions insurance to export facilities, ठीक है। तो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर इसके लिए आपका सी, ठीक है। सो इंटेंड टू गिव एक्सपोर्टर एश्योरेंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेमेंट रिस्क associated with particular export shipments. It is intended to safeguard exporters. They conduct specific business transaction with the certain foreign customers. Okay. Export turnover policy, and that was एक और हमने पढ़ा था ना यार, ऐसे ही आपको ना कंफ्यूजन करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। आई जस्ट मिस दैट नेम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। The Indian government established the Credit Guarantee Corporation ECGC Limited to encourage exports. Which of the below stated statements are true about the main objective of ECGC? तो ECGC के ऑब्जेक्टिव, पहला स्टेट वी हैव गिवन 4 स्टेटमेंट, ठीक है। सो फर्स्ट आपका टू इंक्रीज एंड फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन of India's trade. No, globalization of India's trade is this is the objective of EXIM. ये EXIM का objective होगा, ठीक है। To provide insurance coverage to Indian exporters, ये होगा, ठीक है। B आपका सही है, मतलब दूसरा statement सही है। To protect Indian exporters against unforeseen losses, to facilitate availability of educate मतलब दूसरा भी सही होगा, through insurance, ठीक है। तीसरा मतलब to facilitate availability of educate bank finance टू इंडियन एक्सपोर्टर, इट शुड बी अगेन पार्ट ऑफ एग्जिम। मतलब ये दो आपके एग्जिम से रिलेटेड सही बैठते हैं, मतलब अगर हम इनके एक्यूरेसी के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो आपका दूसरा एंड तीसरा, ठीक है, दूसरा एंड तीसरा, सो बी शुड बी राइट आंसर, यस, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो टू प्रोवाइड क्रेडिट इंश्योरेंस सर्विसेज टू इंडियन एक्सपोर्टर, प्रोटेक्टिंग देम अगेंस्ट payment default by overseas buyer and also ensuring against political and commercial risk, ये मतलब जो उनका ऑब्जेक्टिव है उससे आपका डेफिनेशन है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है। प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज टू इंडियन बिजनेस फॉर एक्सपेंडिंग देयर
डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी इट इज, ये भी आपका है, ठीक है, बट इससे फाइनेंसिंग एंड प्रोमोटिंग इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, ये इसका मतलब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, मैनेजिंग फंड्स in the area of infrastructure in others, no, collaborating with international development banks for overseas investment finance, ठीक है, तो सबसे मतलब ये भी है, बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका बी, ठीक है, फाइनेंसिंग से रिलेटेड आपका, ठीक है, सो this it provide a wide range of financial services to Indian exporters and importers, including export credit, pre-shipment credit, post-shipment credit, and overseas investment finance. Okay? Next one. Exim Bank collaborate with other institutions both in India and overseas to uh, advocate policies that promote international trade, provide line of credit to foreign governments and financial institution, facilitate India's international trade and investment. Again, so C should be right answer for this one. Yeah. Conduct research and all, right? Next one, what role does the RBI play in India's foreign exchange market? मतलब ये तीसरा यूनिट आपका अगला यूनिट लग गया, ठीक है, रोल ऑफ एक्सिम, RBI, FE, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड ऑल, ठीक है. So it provide loan to for no role of RBI in foreign exchange team. So it provide loan to foreign countries to ensure that availability of foreign currency for travelers. It intervenes to stabilize the exchange rate and manages countries' foreign exchange reserve. Again, it facilitate cross-border trade by using issuing special trade related currencies. No, so option C will be right answer for this one. Next one, what is the maximum amount of foreign currency note that an Indian citizen can carry during a visit abroad under FEMA provision 1999? So what is the limit? It is in general countries, in case of it is 3000 US dollar and equivalents, and there are some other countries like जैसे रशिया के लिए देयर इज नो लिमिट, देयर आर सर्टेन कंट्रीज यहाँ पे आपका 5000 होगा, ठीक है, यू हैव टू हैव रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है, सो 3000 और इट्स इक्विवेलेंट्स. इक्विवेलेंट्स मींस अगर आप किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहाँ डॉलर नहीं है तो उसका डॉलर के बराबर की वैल्यू एंड मैक्सिमम लिमिट इज $3000. ओके, so FEMA provision an Indian citizen can carry a currency note up to 3000 or its equivalents during their abroad visit. However, for Libya and Iraq it is 5000 US dollar. For Iran and Russia there is no limit, ठीक है, ईरान और रशिया के लिए हमारे यहाँ से कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है, ठीक है. अगला, what is the primary function of foreign exchange dealers association of India? तो ये हमने आपका डे वन भी इसको स्टडी किया था. तो बेसिकली इट वर्क और इट एक्ट लाइक IBA और एमफी इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, इन केस ऑफ बैंक इट इज IBA, ठीक है. तो वैसे ये भी काम करता है, जो फॉरेन ट्रेडर्स आपके होते हैं, डीलर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देना, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाना, RBI तक पहुंचाना, या फिर आपका कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है अमंग द ट्रेडर्स एंड ऑल, उसको रिजॉल्व करना, ठीक है. सो टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू बैंकर्स to form uniform rule for foreign exchange transaction, to offer guidance and information to non-profit organization, to provide concessional rate of interest to this. So I'll go with option B, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट वन. देखो यहाँ टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू बैंकर्स, अगर यहाँ फॉरेक्स ब्रोकर्स होता तो वो भी बैंकर्स ही होता है, बट हाँ डायरेक्ट वे में अगर हम जाएंगे तो कुछ इस तरीके से, ठीक है. तो 1958 में बना था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इस पे बहुत बार क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है. What compensation applicable for delayed payment on foreign inward remittances up to 1 lakh if not credited to accounts within 10 days? ठीक है, तो कितना होता है 2% plus telegraphic transfer, ठीक है. So 2% above the telegraphic transfer will be right answer for this one, ठीक है. So if the proceed of any foreign inwards remittances up to rupees 1 lakh are not credited to account within 10 days, and advice of receipt is not sent within 3 days, compensation at the rate of 2% above the TT selling rate will be paid to the beneficiary as per Foreign Exchange Dealers Association of India's rule, right? Next one, which of the following purpose is not eligible for availing external commercial borrowing ECB under the automatic route as permitted by RBI, ठीक है.
So which of the following purpose is not eligible for availing ECB under automatic route? तो कौन सा? Fresh investment ये है, extension of existing facilities, trade credits, buyer and sellers for 3 years and more, investment in real estate, ठीक है, it is not allowed, ठीक है। तो ये पहले के तीन आपके हैं, ठीक है। एंड ईसीबी का जो नॉर्मल मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड होता है दैट इज 3 years, तो उसके हिसाब से ये भी सही है, ठीक है। तो डी, इन्वेस्टमेंट इज इन रियल एस्टेट, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी आपका दे आर रेजिंग फंड्स थ्रू ईसीबी, सो दैट प्रोसीड कैन नॉट बी यूज इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। Next one, guys. What is the primary characteristics of approval route for ECB? So approval route of ECB. तो क्या route समझा था हमने? मतलब company they have to approach to authorized dealers category 1 bank. Then authorized dealers category 1 bank will review their application and they'll pass on to RBI for the approvals. ठीक है। और ऑटोमेटिक रूट में आपका अगर सब कुछ सही है तो ऑथराइज डीलर 1 ही उसको अप्रूव कर देगा, ठीक है। So fund are borrowed without seeking approval from RBI. No. In insurance issuance of guarantee and standby LC is allowed. Fund can be raised from any lenders without RBI restrictions. Borrower required approval from RBI and guarantee and LC are not allowed in this particular case. So D should be right answer for this particular one. Okay? Approval route for external commercial borrowings is a method by which funds are borrowed after seeking approval from the RBI. Automatic rule, unlike automatic rule, which allow this. Additionally, under this approval route, issuance of guarantee and LC, standby LC is not allowed. Not allowed. Please ध्यान रखिएगा इसको. Next one. When is an individual required to submit the currency declaration form to the custom authorities on arrival in India, ठीक है। तो आपको जो कस्टमर, जैसे अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में गए हैं, ठीक है, अब वहां से वापस इंडिया में आ रहे हैं, तो कब आपको CDF करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म आपका फिल करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे या कस्टम पे, ठीक है, जब आप वापस आएंगे। सो व्हेन यू हैव कैश और चेक वर्थ $10,000 और इक्विवेलेंट्स, ठीक है। So if the aggregate value of foreign exchange exceed 5,000, no, it should be 10,000 or equivalent. State. If the aggregate value of foreign exchange, including foreign currency traveler's check, worth rupees 10,000, $10,000 or its equivalents. ठीक है, तो उस केस में you have to fill the form that is called currency declaration form. ठीक है, so an individual is required to submit the currency declaration form CDF to custom authorities on arrival in India if aggregate value of foreign exchange, including foreign currency, traveler's check, and all, it exceeding $10,000 or its equivalents. नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव ऑफ IFSCA, ठीक है, यूनिट नंबर 9 है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका ये। विल डेफिनेटली सी 1 और 2 बेसिक क्वेश्चन, 1 केस स्टडी बेस्ड ऑन दिस वन, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड पे क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, ठीक है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के, ठीक है। तो कम से कम 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो IFSCA का ऑब्जेक्टिव आपका, ठीक है, तो IFSCA आपका, ठीक है, सो हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस भी किया, ठीक है। क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कनेक्शन व्हाइल फोकसिंग ऑन द requirement of the Indian economy, serving as an international financial platform for the entire region and the global economy to facilitate doing business or ease of doing business in IFSC and offer वर्ल्ड क्लास रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ठीक है। तो IFSC क्या है, बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल रेगुलेटर्स, ठीक है। तो बेसिकली जैसे पहले क्या होता था, इफ एनी फॉरेन इन्वेस्टर्स हु वांट और विश टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट, so they have to go through the multiple financial regulators like RBI, IRDA, SEBI and all, ठीक है। तो वो ना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स जर्नी था, तो उसके लिए हमने क्या करा, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात के अंदर IFSCA बनाया, ठीक है। तो जहाँ पे इन सभी की जो गाइडलाइंस उनको क्लब करके आपका एक यूनिवर्सल नॉर्म्स आपके बना दिए, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो एक्टिविटीज सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी के अंदर होती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आपका आसानी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सकता है, या जो ODI इन्वेस्टमेंट है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडियंस के द्वारा, वो यहाँ से किए जा सकते हैं थ्रू फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, ठीक है। So the International Financial Service Center IFSCA is a unified entity in India responsible for development and regulation of financial product,
financial services and financial institutions in IFSCA. The current regulation is the RBI this. So the Act 2019 and it become effective from 27th April 2020 with headquarter located in Gandhinagar, Gujarat. ठीक है. These are some main objectives of this particular. तो कौन कौन से एक्टिविटीज में होता है या खासकर IBU के रिगार्डिंग. ठीक है. सो IFSC बैंकिंग यूनिट्स जो है उनके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलेंगे एलिजिबिलिटीज एंड ऑल. व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल एट गिफ्ट सिटी. ठीक है. तो आपका एक्सेस टू लार्ज हिंटरलैंड इकोनॉमी, ठीक है, अट्रैक्टिंग ग्लोबल टैलेंट एंड इनबाउंड एंड आउटबाउंड गेटवे फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज. ठीक है. अब इतना आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा बट दे गिव यू द स्टेटमेंट एंड एक स्टेटमेंट गलत आपका दे देंगे एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वन. तो ये आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपको बहुत अच्छे से इनको आपका स्टडी करना होगा और याद रखना होगा. ठीक है. जैसे ये पूरा अगर आप IFSCA का वेबसाइट भी ओपन करेंगे ना वहां पे भी आपको ये चीजें मिलेंगी और इसीलिए मैंने फाउंडेशन वीडियोस में बहुत मतलब गहराई के साथ इनको समझाने की कोशिश की है. ठीक है. सो दीज आर दी ओवरव्यू. जैसे आपका बैंकिंग एक्टिविटीज हैं यहाँ पे. ठीक है. बैंकिंग जिन्होंने अगर वो फाउंडेशन वीडियोस देखे हैं ना तो वो रिकॉल कर पा रहे होंगे. ठीक है. कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज, इंश्योरेंस, इमर्जिंग बिजनेस सेगमेंट्स, प्रोफेशनल सर्विसेज, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एसेट मैनेजमेंट, ये सारे जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन गाइस, the parent bank setting up IBU limit unit at IFSC must satisfy the following conditions under the regulatory framework. Which of the following is not a conditions that the parent banks should satisfy? ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है. मतलब चार में से एक आपका जो इनकरेक्ट है दैट यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है. तो अगर कोई IB जैसे कोई आपका जैसे पेरेंट बैंक लाइक SBI. ठीक है. अगर SBI को अपना IBU आपका ओपन करना है कहाँ पे, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात के अंदर. ठीक है. पहली चीज तो एक IFSC सेंटर के अंदर एक ही आप ब्रांच ओपन कर सकते हैं. ठीक है. एंड दिस ब्रांच विल बी कंसीडर SBI की जो IBU है ना आपका IFSC बैंकिंग यूनिट है इसको हम लोग आपका फॉरेन ब्रांच की तरह आपका कंसीडर करते हैं क्योंकि यहाँ पर सारी करेंसी जो एक्टिविटीज है वो फॉरेन करेंसीज में हो रही होती है. ठीक है. पहली चीज. दूसरा, एक IFSC सेंटर में आप सिर्फ एक ही ब्रांच ओपन कर सकते हैं. ठीक है. उसी के थ्रू आप एक्टिविटीज करेंगे और इंडिया में अभी तक सिर्फ एक ही IFSC है जो गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे इसके संबंध में कुछ गाइडलाइंस आपके हैं एंड दोज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो IBU आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन SLR एंड CRR. नो, इनको पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत है. ठीक है. जो IBUs हैं आपका उनको SLR CRR मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है. दे हैव टू मेंटेन अनदर रेशियो दैट इज कॉल्ड रिटेल डिपॉजिट रेशियो. 3% पे आपको मेंटेन करना होता है जो भी पिछले दिन के आपके जो ओवरऑल डिपॉजिट है उन पे. ठीक है. लेटर ऑफ कंफर्ट फ्रॉम पेरेंट बैंक रिगार्डिंग लिक्विडिटी एंड सोर्सेज. बिल्कुल सही. नहीं है. ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम होम कंट्री रेगुलेटर्स सेटिंग अप एन IBU. मतलब जैसे अगर इंडियन बैंक है जैसे SBI है so they have to take NOC from RBI itself. ठीक है. एंड जो आपका लिक्विडिटी के संबंध में जो सपोर्ट होगा दैट विल बी कमिटेड बाय SBI itself. ठीक है. IBU are required to maintain retail deposit reserve ratio at 3% of deposit raised from the person outstanding at the end of preceding working day. ठीक है. ये ध्यान रखिएगा. तो क्या होगा, ये भी आपका सही है. तो ओनली स्टेटमेंट इनकरेक्ट इज ऑप्शन ए आपका. तो ये जो गाइडलाइंस है ना ये मतलब मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा कि इनको बिल्कुल अच्छे से आपका रट डालिए. ठीक है. मतलब इतना तक याद रखिए कि आप जब आपका पेपर हो जाए ठीक है उसके बाद भूल जाना भले ही. ठीक है. तो बट पेपर हॉल तक पूरा बढ़िया से एकदम खत्म होने तक इनको अपने दिमाग में रखना. ठीक है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे $20 मिलियन US का आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट है. ठीक है. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमने डिस्कस किया. पेरेंट आपका LCR और जो आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो या नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो है इट कैन बी मैनेज एट बैंक लेवल बट यू हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम IFSCA. ठीक है. इसके अलावा लिवरेज रेशियो अगेन आपका सेम चीज में. ठीक है. पेरेंट बैंक लेवल पे होगा और अप्रूवल लेना पड़ेगा IFSCA का. ठीक है. सारी गाइडलाइंस IFSCA की होंगी. मतलब जहां जहां पे IFSCA को लगता है कि ये इस हिसाब से फॉलो होगा वो मेंशन वो फॉलो करना पड़ेगा. उसके अलावा जो अदर गाइडलाइंस होंगे वो आपका होम कंट्री रेगुलेटर के होंगे. ठीक है. जैसे इंडियन बैंक है तो जैसे इंडिया में IFSC है तो RBI की जो गाइडलाइंस है और जैसे कोई US बैंक है तो US की जो गाइडलाइंस है वो आपका फॉलो करनी होगी. ठीक है. अनलेस अदरवाइज इंडिकेटेड बाय IFSCA IBU मस्ट फॉलो द प्रूडेंशियल गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द होम रेगुलेटर्स. ठीक है. चलो
तो ये आपके बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस, ठीक है. द एक्सपोजर लिमिट फॉर IBU is the dash of parent bank's tier 1 capital. In case of single borrower it is 5%, ठीक है, and dash in case of group borrowers it is 10%, ठीक है. अब इसके ऊपर ना वो कई बार आपको क्वेश्चन भी दे सकता है इसी के ऊपर आपका, कि जैसे there is a ABC bank whose tier 1 capital is 1000 crores, ठीक है. So there is a company who is approaching for a loan as a single borrower, so maximum कितना लोन दिया जा सकता है, ठीक है. This we are going to practice in our upcoming sessions, ठीक है. ये जो क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस है उनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे ढंग से, बट उनके लिए भी ना ये आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है. अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर वो कैसे सॉल्व होंगे, तो फंडामेंटल इसीलिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है. IBU are required to maintain a retail deposit reserve ratio of 3%. ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है. So this is the one. Next one. The parent banks will require to contribute a minimum capital कितना 20 million US dollar or equivalents in foreign currency to its IBUs. तो 20 million आपका in equivalents, ठीक है. Next one. An international IFSC help in किस में help करता है? फंड रेजिंग सर्विसेज हैं, वेल्थ मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है. तो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है. दीज आर द सर्विसेज which we get at IBU, ठीक है. और investors they generally get at IBU, ठीक है. Next one. Which of the following claim about IBU gives it is false, ठीक है. कौन सा? IBU are prohibited from obtaining obligation from HNI or other retail customers. हमें क्या ढूंढना? फॉल्स, ठीक है. RBI will provide liquidity support to all IBUs in the gift city. यहाँ पे क्या होना चाहिए था? RBI के रिप्लेसमेंट में पेरेंट बैंक्स होना चाहिए था. पेरेंट बैंक्स अपनी जो IBU है उसको लिक्विडिटी सपोर्ट. बिजनेस बेस्ड ऑन IPU आर exempted फ्रॉम पेइंग STT. दिस इज ट्रू. STT और CTT पे करने की जरूरत नहीं होती है. इंडियन एंड फॉरेन बैंक प्लानिंग टू ओपन एन IBU, so they have to take prior approval from their home NOC from their home regulators and license from IFCA, ठीक है. So option B will be right answer because it is incorrect, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन. Which of the following below mentioned claim regarding IBU are true? यहाँ पे आपको सही ढूंढना है चार में से, ठीक है. IBU are allowed to open saving account? No. IBU check facility will be available for holders of current account? No. यहाँ पे check facility नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होंगे, करंट अकाउंट नहीं होगा, सॉरी सेविंग अकाउंट नहीं होगा, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है. IBU can maintain a balance sheet in Indian rupee? No. In addition to a foreign currency for operational purpose. Okay, I have to check this. IBU allowed to act as an underwriter, arranger of INR denominated overseas bond issued by Indian entities in overseas market. This is true. IBU can maintain, देखो यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी में डील होता है, ठीक है. तो डी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है. डी आपका सही है. सो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसके लिए, ठीक है. नेक्स्ट वन. व्हाट आर द परमिसिबल एक्टिविटीज एट IBU? IBU आर परमिटेड टू अंडरटेक फैक्टरिंग फॉरफिटिंग सर्विसेज. चेक फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर होल्डर्स? नो. लिक्विडिटी सपोर्ट विल बी अवेलेबल फ्रॉम RBI? नो. Transaction can be in INR and other currency? No. तो option A only will be right answer for this one. Remaining all are wrong, ठीक है. तो ये थोड़ा सा ना आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए. नेक्स्ट वन. Each of the following are true regarding the setting up IBU except एक को छोड़ के. Cash transaction in saving bank account are permitted? This is wrong, ठीक है. हमें रॉन्ग ही ढूंढना है ना, तो ये आपका होगा. डिपॉजिट कैन बी मेंटेन इन करंट अकाउंट एंड टर्म डिपॉजिट. KYC AML गाइडलाइंस आर नॉट एप्लीकेबल्स, ये भी गलत है, ठीक है. डिपॉजिट विद IBU आर इंश्योर्ड, ये भी गलत है. हमें क्या ढूंढना था? Each of the following is true regarding the setting up IBU by the Indian bank. Cash transaction and saving bank accounts are permitted? No. Deposit can be maintained in current accounts and term deposit. So हमें क्या ढूंढना है आपका? एक्सेप्ट हम तो रॉन्ग ढूंढना है ना, तो रॉन्ग हमारे लिए क्या है इसमें? ACD है इसमें. हाँ, तो B शुड बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है. यस, हाँ, तो ये सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही था इसमें जो ये था, बाकी सब आपके गलत थे, ठीक है. तो गलती हमें ढूंढने थे. Each of the following is relaxation given to FPI, foreign portfolio investments.
in GIFT City. Again, this question is very important. ठीक है. So facilities to FPI in GIFT City, Gandhinagar या IFSC Center. ठीक है. So short term capital gain exempted for derivative trading. True. Normal market में it is 30%. ठीक है. But अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा. ठीक है. कंपनीज टू पे STT एंड CTT. नो, कंपनीज दे डू नॉट हैव टू पे. ठीक है. उनको पे करने की जरूरत नहीं है. तो ये रॉन्ग है आपका. ठीक है. FPI are permitted to trade commodities derivative on IFSC exchange. True. Allowing retail investor to build diversification. This is also true. ठीक है. तो आपका ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी आपका. ठीक है. तो ये ध्यान रखें गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगेन सबके लिए. So SEBI has permitted FPI registered in India to trade in exchange operating in GIFT City. FPI are permitted to trade commodities derivatives on IFSC exchange. Companies do not pay securities transaction tax in CTT, commodities transaction tax. All exchanges are open 24 hours a day. Short-term capital gain tax exemption for derivative trading, allowing a retail investor to trade in this particular. ठीक है. तो दिस इज क्लियर आई गेस. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्विफ्ट. ठीक है. देयर इज वन यूनिट कॉल्ड टेक्नोलॉजी इन फॉरेन ट्रेड. ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. एक दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. ठीक है. मोस्टली इट इज अराउंड स्विफ्ट, चिप्स, चाप्स, इनके अराउंड आपके रहते हैं. ठीक है. या ब्लॉकचेन या अदर्स इनके ऊपर. तो आई गेस कि आप लोग उनको हैंडल कर लोगे. ठीक है. देखते हैं फिर भी. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक financial telecommunication in this. So real time foreign exchange trading, no. आपका secure communication and messaging for across all the borders. So B only will be the right answer for this one. ठीक है. Next one, what technology enable contactless payment using NFC, near field communication in international banking. तो क्या होता है RFID. ठीक है. So RFID means आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. जैसा होता है ना कार्ड्स वार्ड्स पे, वाईफाई कार्ड्स, ये सब इसी से काम करते हैं. ठीक है. सो NFC और RFID का लिंक होता है. जैसे POS है आज के डेट में हमारे सारे ये. ठीक है. So RFID technology enable contactless payments using near field communication in international banking as well. RFID tag embedded in payment cards or mobile devices can communicate with NFC enabled terminals, allowing for quick and secure contactless transactions without the need for physical contact or payment terminals. ठीक है. Next one, which technology enables secure and tamper-proof recording of cross-border transactions in a decentralized and transparent manner. बताओ क्या होगा decentralized. ठीक है. तो ये तो ब्लॉकचेन आपका है, इसमें नहीं है. अच्छा, तो DTL आपका, हाँ ये है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, DTL, विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉकचेन. ठीक है. ये ध्यान रखिएगा. हाँ ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन. तो C विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन. ठीक है. So distributed ledger technology or blockchain enables secure and tamper-proof recording of cross-border transaction in decentralized and transparent manner. Blockchain technology create a chain of blocks that store transaction data, and each block is linked to the previous one, forming a distributed and immutable ledger. This enhance security and integrity of cross border transaction. तो ये काफी ज्यादा यूज हो रहा है आज के डेट में. नेक्स्ट वन, ओके दिस इज. तो गाइस ये आपका मॉड्यूल ए, ऑल द 10 यूनिट्स. ठीक है. जिनको हमने पास 3 सेशन के अंदर आपका कवर अप किया. ठीक है. सो काइंड ऑफ अ रिविजन. अभी भी मैं आप सभी को वही सजेस्ट करूंगा, सेम चीज आपका, कि प्लीज 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 डू वर्क ऑन योर फंडामेंटल पार्ट. ठीक है. तो अगर आप फंडामेंटल्स पे काम करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा मदद आपको फंडामेंटल से मिलेगी. ठीक है. और इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करके आओगे ABM के पेपर के अंदर ही. ठीक है. तो ABM में थोड़ा सा क्या है कि अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक वाला पोर्शन, ठीक है, बाकी थोड़ा सा अगर आप पढ़ते हो तो समझ में आ जाएगा. ठीक है. इसीलिए हमने आपका पीयूष सर से बेसिकली मॉड्यूल ए का सारा आपको करा करके दिया है. ठीक है. उन वीडियोस को जरूर देखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे. ठीक है. इसके अलावा भी जैसे क्विज कराते रहते हैं हम लोग आपका चैनल पे, तो वो आपका. ठीक है. और एक और चीज, मॉक टेस्ट. ठीक है. तो BFM आप आगे जितने भी पेपर हैं सबके मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे. ठीक है. खासकर जो भी कैंडिडेट्स आपके एनरोल किए हैं, तो आपका जो BFM के मॉड्यूल वाइज ऑल द 4 मॉड्यूल्स, चारों मॉड्यूल्स के मॉक टेस्ट अपलोड हो सके. आप जितनी बार चाहें उतनी बार उनको लगा सकते हैं. ठीक है.
मॉक टेस्ट से ना आपको क्वेश्चन याद रह जाएंगे, ठीक है। दूसरा, फुल लेंथ मतलब मॉड्यूल आपका मॉड्यूल वाइज भी, जिसमें यूनिट का सीक्वेंस फॉलो किया गया, एंड आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपका, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी वो लाइव कर दिए हैं, तो उनको अटेम्प्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्या होगा, मॉक टेस्ट से ना आप कभी भी बैठो कहीं पे भी आराम से टिक टिक करते जाओ, आपका डिटेल सोल्यूशन दिया गया हर एक क्वेश्चन के नीचे, उनको पढ़ो, उससे भी चीज़ें ना आपको बहुत जल्दी रिकॉल होंगी, ठीक है। प्रैक्टिस का एक नया तरीका जो हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे गाइस, नाउ आई विल सी यू टुमारो विद अनदर सेशन, ठीक है। एंड ऐसे रेगुलर बेसिस पर आपका कंट्रीब्यूट करते जाएंगे, ठीक है। अभी आपका दिमाग बिल्कुल होना चाहिए एवीएम के ऊपर, विदाउट एनी डाउट आप एवीएम पढ़ो बढ़िया से, ठीक है। तो मैं आपके लिए तब तक एक बैंक तैयार कर देता हूँ, जैसे ही हो जाएगा तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं इन सब वीडियोस को देखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।